Hello everyone, welcome to Heritage Gate Architecture. This is Architect Chanda Sinha and I hope you all are fine. So today I'll be discussing with the last and the most important topic of this housing unit, that is the housing numericals, right? Or isme I will try to cover up almost the different type of question which is asked in GATE in this section. और देखो मेरे लिए भी it's not possible to cover all the questions of GATE, right? बहुत सारे questions हैं, तो जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगी सो दैट यू गेट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स कि कैसे अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन में. ठीक है, देखो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशन देयर आल्सो. ठीक है, आई विल आल्सो एक्सप्लेन इन दैट वे ओनली कि तुम लोग अच्छे से समझ जाओ. बट उसको क्यों किसी भी थ्योरी को क्यों अप्लाई किए, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच लेना है किसी क्वेश्चन के लिए, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू in very easy manner. I'll try to make it very easy. और जो भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हम लोग असाइनमेंट्स में दे देंगे. ठीक है, तो वो आप लोग खुद से सॉल्व करना. उसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन मैसेज अस. ठीक है, और सो लेट्स बिगिन. So let's begin with the recent question asked in 2021 GATE exam. तो या इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है. पार्ट वाइज वी विल रीड एंड वी विल राइट द गिवन पोर्शन एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल एनालाइज एंड सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? सो इन अ हाउसिंग प्रोजेक्ट 75% of the permissible FAR, ठीक है, was utilized after constructing 4 number 8-story MIG towers with identical floor area of 400 square meter. ठीक है, देखो यहाँ पे हमें टोटल बिल्टअप एरिया नहीं बताया है. ठीक है, बट एक टोटल बिल्टअप एरिया नहीं बताया हुआ है, बट उसका कुछ पोर्शन MIG के लिए यूज होगा और कुछ LIG के लिए यूज होगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, कि हमें इसका पूरा डेटा दिया हुआ है, इसका भी कितने फ्लोर का होगा, क्या होगा, तो वो सारा चीज दिया हुआ है. तो उससे हम लोग सबसे पहले टोटल built-up area calculate करेंगे. Fine. So let's solve this question. What is given? That is 75% of the permissible FAR was utilized for constructing 4 number of 8-story MIG. ठीक है, देखो 4 number मतलब 4 building. There are 4 buildings and each of 8 floors. ठीक है, so there are 4 number 8 story and each of 8 floor, and the floor area of each floor is 400 meter square. ठीक है, तो क्या इससे हम लोग टोटल MIG को बनाने में कितना एरिया यूज हुआ है कैन बी कैलकुलेटेड. यस, देखो कैसे, मेरे पास 1 फ्लोर का एरिया है, टोटल 8 फ्लोर्स है, तो एक बिल्डिंग का निकल गया, और ऐसे ही देर आर 4 बिल्डिंग्स, राइट? तो what we will do, okay, I'm just erasing this and I'm writing it here. That is the total built up area for MIG tower, okay, is okay. Now we know the area of one floor, so we'll write 400, and there are 8 story, so multiply it with 8, and there are 4 building, so we will again multiply it with 4 and we will get 12,800 meter square. Fine. So this is the total built up area for MIG tower, that is 12,800. Now this is actually the 75% of the FAR. Okay. So this is actually the 75%. So through this, can we calculate the total built up area of the whole plot? Yes. Now look,
x, suppose the total built up area is x, so x का ही 75% हमारा MIG टावर्स बनाने के लिए यूज हो रहा है. So we will write here. Okay. So with this we get 12,800 into 100 by 75. So x we will get as 17,066 meter square. So this is the total built up area. ठीक है, मतलब एक प्लॉट का कितना एरिया बिल्डेबल एरिया होगा, दैट इज योर बिल्टअप एरिया. तो उस टोटल बिल्टअप एरिया को वी हैव कैलकुलेटेड. ठीक है, उसका 75% इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग MIG. सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. इफ 3 number 7 story, okay, I'm just erasing this part. Okay, total built up area is 17,066 meters square. Right. Now come to the second part of the question. It says if 3 number 7 story LIG tower, मतलब कितने 3 number 7 story LIG towers, ये समझ में आ रहा है. 3 LIG टावर है और हर 7 फ्लोर का है. ठीक है, विथ आइडेंटिकल फ्लोर एरिया, सारे फ्लोर एरिया सेम है, आर बिल्ट यूटिलाइजिंग द रिमेनिंग FAR. तो टोटल जितना FAR था उसका 75% MIG के लिए यूज हुआ, उसका 25% LIG के लिए यूज होगा. ठीक है, तो फिर हमें निकालना है फ्लोर एरिया ऑफ ईच LIG टावर. फाइन, देखो वी हैव टोटल बिल्ट अप एरिया एंड उसका 75% MIG के लिए यूज हुआ है, तो जो रेस्ट बचेगा दैट विल बी फॉर LIG, राइट. तो वी कैन, ओके, एरिया बिल्ट अप एरिया फॉर LIG कितना अवेलेबल है. सो दैट इज 17,066 मीटर स्क्वायर माइनस 12,800 एंड वी गेट 4266 meter square, right? So the area available for LIG construction is 4266. और कितने LIGs बनाने हैं? 3 number 7 story के. ठीक है, अब देखो we know these things. अब next question, next part, that is the floor area of each LIG tower. ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में there was a contradiction. ठीक है, और इस वजह से सारे बच्चों को बोनस मार्किंग मिल गया था. देखो इस क्वेश्चन के फ्रेमिंग में क्या इशू है, यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है फ्लोर एरिया ऑफ ईच LIG टावर. ईच LIG टावर मीन्स यहाँ पर 3 LIG टावर है. ठीक है, 3 LIG टावर है और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग that the floor area of each LIG tower, it means जो ये टोटल आया था 426 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, बट जब आंसर की आया गेट का तो वहां पर अगर इसको 426 डिवाइडेड बाय 3 करोगे इट विल कम आउट टू बी 1422 मीटर स्क्वायर. बट in the answer key of gate it was given 203 something, right? So it means they are not taking each LIG tower, they are taking each individual floor of the LIG tower. ठीक है, तो यहाँ पर ही एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेमिंग के सेंटेंस में प्रॉब्लम था और एवरीबडी गॉट द बोनस मार्किंग फॉर दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना था, हमें into 7 भी करना था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डिंग का एक फ्लोर का हमें निकालना है और ऐसे टोटल कितने फ्लोर है,
तो एक बिल्डिंग में 7 फ्लोर है और ऐसे टोटल 3 बिल्डिंग है, ठीक है। तो वी हैव 21 फ्लोर्स, फाइन, वी हैव 21 फ्लोर्स। सो आफ्टर दिस it will come out to be 203.1 समथिंग मीटर स्क्वायर और ऑफिशियल की में भी वही था। तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में चेंज होना चाहिए दैट इंडिविजुअल फ्लोर एरिया ऑफ LIG टावर, ठीक है। टोटल जितने भी LIG टावर्स है उनका इंडिविजुअल फ्लोर एरिया कितना है, वो आएगा 203, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन एंड ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now come to the next question. It was asked in 2020. तो there was a table given और यहाँ पे number of married couple और कितने rooms है एक घर पे, वो सारी चीज दिए हुए हैं, ठीक है। That number of couple and how many rooms are there in one house, ठीक है। Now, okay, there was a condition that each couple needs one separate room. Fine. Now, in the question it was asked how many additional room is required. ठीक है। तो देखो यहाँ पे basically क्या करना है, number of married couple in a household. तो जब 0 है, there is no couple in the house, so there is no requirement of any room. मतलब एक रूम है, 2 रूम है, 3 रूम है, जितने भी रूम है चल जाएगा। एक सेपरेट रूम का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इज देयर एनी शॉर्टेज ऑफ रूम इफ देयर इज नो कपल हियर? नो, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनी रूम हियर। सो यहाँ पर तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा रूम की। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हेन देयर इज वन मैरिड कपल, ठीक है। जब एक मैरिड कपल है, सो दे नीड वन रूम, एटलीस्ट दे नीड वन रूम, ठीक है। सो एक रूम के इतने सारे हाउस होल्ड्स है, तो क्या कोई शॉर्टेज होगी रूम की? फिर यहाँ पर तो 2 रूम है, 3 रूम है, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा 1 रूम है, एक्स्ट्रा 2 रूम है, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ रूम हियर ऑल्सो, फाइन। नाउ व्हेन इट कम्स टू 2 कपल, ठीक है, मीन्स एक हाउस होल्ड में एक रूम तो एक कपल का होना ही चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर 2 कपल है, इट मीन्स दे नीड 2 रूम, 2 सेपरेट रूम। बट ये जितने भी हाउस होल्ड्स है, लाइक ये जितने भी ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम है, लाइक दे आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। बट कपल कितने हैं? 2। रिक्वायरमेंट हमें एक रूम की और है, कितने सारे ड्वेलिंग यूनिट्स में? 3600 ड्वेलिंग यूनिट्स में, ठीक है। तो देयर इज मतलब एक कपल तो रह लेगा इसमें, ठीक है। बाकी और जो लाइक इसको ऐसे डिवाइड करो, 2 है तो एक कपल, एक तो इसमें रह लेगा, एक के लिए रूम अवेलेबल नहीं है, सो दे नीड एक्स्ट्रा दिस 3600। सो राइट हियर 3600 का शॉर्टेज है, फाइन। अब यहाँ पर 2 रूम है, सो वी हैव 2 कपल, 2 रूम, नो शॉर्टेज ऑफ रूम। देन वी हैव 3 रूम, 2 कपल, एडिशनल रूम, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ पर 3 कपल है, ठीक है, सो एंड वी हैव फर्स्ट वन, जब वी नीड 3 रूम, राइट, 1 2 3। तो इसको अगर डिवाइड करो लाइक 1 1 1, एक कपल 1 रूम वाले जो भी घर है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, बट 2 कपल दे नीड another rooms also। तो 432 units के लिए we have 2 couple who don't have their separate room, so 432 into 2 is the shortage for 1 room dwelling units. Now if we talk about the 2 rooms but we require 3 room, अभी अवेलेबल 2 रूम है,
तो ये दो कपल जा करके एक इसमें रह लेंगे, एक इसमें रह लेंगे, ये तीसरा कपल के लिए तो स्पेस ही नहीं है, तो वी आर लैकिंग 750 मोर रूम्स, ठीक है। सो प्लस 750, ओके। अब बट जो 3 रूम है तो ये तीनों कपल जा करके ये तीनों रूम में रह लेंगे, फाइन। सो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनी रूम, सो इट विल बी लाइक प्लस 0, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस you will get it 1614. So additional room we require is 1614 plus 3600, ठीक है। So after calculating the this two, you will get 5214. So we require additional 5214 rooms, fine. So this was asked in question, this was asked in GATE 2020, ठीक है। Okay, now after these two questions, let's start with the next question which was asked in GATE 2017. So I'm not writing the question, I'm just writing the given part of this and then I'll explain it. Now look, you will get all the solution in any previous year question book, right? But I'm telling you the explanation behind it and the approach how to reach to any answer, fine. So I'm not writing the whole question, but I'm writing the given part of 2017. You can refer to your previous year question bank, right? Now look, it was given that plot area is this much and this plot area is being used to build HIG, MIG and LIG, fine. अब HIG कितने % बिल्ड करना है, दैट इज योर 30%, MIG 50% एंड LIG इज 20%. आपका मैक्सिमम FAR गिवन है, फाइन। मैक्सिमम FAR गिवन इज 2.5 एंड ग्राउंड कवरेज इज 45% and height of the building should be 15 meter, ठीक है। तो ये था, और what are we supposed to find, that is the maximum buildable area in square meter for the HIG units का maximum buildable area, ठीक है। maximum buildable area of HIG और floor height is given, okay. Floor height is given 3 meter, means we have to consider floor height as 3 meter. Okay, so पहले हमें plot area given है, FAR given है, तो क्या total built up area निकलेगा, देखो कैसे, what is the formula for it, FAR is equal to total built up area by plot area, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर हमें ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है 45%. सो व्हाट इज ग्राउंड कवरेज, ग्राउंड कवरेज परसेंटेज में हमेशा आता है एंड दैट इज सपोज 10, लाइक यहाँ पे 45% है तो इट कैन बी लाइक 50%, 60%. तो इट्स आई एम टेकिंग एनी आर्बिट्ररी वैल्यू लाइक X% ऑफ प्लॉट एरिया, लाइक दिस एरिया, ठीक है, फाइन. तो एक ये हो गया FAR और दूसरा हो गया ग्राउंड कवरेज, ठीक है. ये दोनों फॉर्मूला से देखो. अब क्या करना है, हमें टोटल बिल्टअप एरिया निकालना है. फाइन, देखो सपोज दिस इज योर प्लॉट एरिया, इसका कुछ पोर्शन ही तो बिल्टअप एरिया होता है, बाकी इधर से सेटबैक 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 और ये फ्रंट सेटबैक भी कुछ छोड़ते हैं, ठीक है. तो ये जो एरिया बच जाता है दिस इज योर बिल्टअप एरिया. और हर फ्लोर मतलब जो भी FAR होता है उस रीजन का, उससे टोटल कितने फ्लोर्स तक जाएगा वो बिल्डिंग, वो पता चलता है, ठीक है. और सारे फ्लोर के फ्लोर एरिया को ऐड करके वी गेट टोटल बिल्टअप एरिया, ठीक है. तो ओके, सो वी आर गिवन FAR
एंड प्लॉट एरिया, तो उससे हम लोग टोटल बिल्टअप एरिया निकाल लेंगे. टोटल बिल्टअप एरिया इज 2.5 into this plot area 60750 meter square. So when you will multiply it, you will get 151,875 meter square. देखो जब भी FAR गिवन है, ग्राउंड कवरेज गिवन है, प्लॉट एरिया गिवन है, तो पहला स्टेप हमेशा उससे टोटल बिल्टअप एरिया निकाल लो, या फिर टोटल बिल्टअप एरिया गिवन है और FAR गिवन है तो प्लॉट एरिया निकाल लो. मीन्स दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. ये दिया ही हुआ है ताकि आप टोटल बिल्टअप एरिया निकालें. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर. फाइन. अब देखो हमें ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है. ग्राउंड कवरेज मीन्स ये वाली पोल, ये कितना हमें यूज करना है. फाइन. सो दैट इज 45%. So 45%, that is 45, okay, I'm writing it in the formula manner, 45% of plot area, that is 60750, that is 45 by 100 into 60750, and the ground coverage will come out to be 27,337.5 meter square. ठीक है. So you got your total built-up area first, then ground coverage also you got to इतना. ठीक है. और हमें क्या बोला गया है कि हाइट है हमारा 15 मीटर, और ये फ्लोर हाइट मीन्स फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, लाइक दिस इज वन फ्लोर, दिस इज नेक्स्ट फ्लोर, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 3 मीटर. ठीक है. तो हाइट और मैक्सिमम हाइट, कितने हाइट तक बिल्डिंग जा सकता है? 15 मीटर तक. फाइन. 15 मीटर तक ये बिल्डिंग जा सकता है. सो नेक्स्ट व्हाट आर वी सपोज टू कैलकुलेट दैट. देखो कितने फ्लोर होंगे. एक फ्लोर का हाइट दिया हुआ है 3 और टोटल हाइट रेस्ट्रिक्शन है 15 मीटर, तो ऐसे 5 फ्लोर होंगे. लाइक कहाँ लिखूं? ओके, आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन. आई होप यू हैव रिटन इट. देखो ये एक फ्लोर का हाइट है 3 मीटर, टोटल 15 मीटर का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है. सो कितने फ्लोर होंगे? एक 3 का है, टोटल 15 है, तो 5 फ्लोर होंगे. ठीक है. 5 into 3 is 15. फाइन. और हमें ग्राउंड कवरेज मतलब ग्राउंड फ्लोर पे कितना बिल्डेबल एरिया होगा दैट वी नो. We have calculated just now, that is 27,337.5. ठीक है. और ऐसे 5 फ्लोर तक जाएगा, तो टोटल बिल्टअप एरिया मेरा कितना आएगा वैसे. सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट 27,337.5 and you will get it like 687.5. देखो एक तो वो FAR के थ्रू भी कैलकुलेट करके वी गॉट द टोटल बिल्टअप एरिया, और एक दूसरा ग्राउंड कवरेज के थ्रू और हाइट रेस्ट्रिक्शन था. सो विद दैट वी कैलकुलेटेड द टोटल बिल्टअप एरिया. राइट. तो अब दोनों में से जो लो होगा वी विल टेक दैट वैल्यू. फाइन. तो दोनों में से पहले जो लो होगा, सो फर्स्ट वैल्यू इट वाज 151,875. फर्स्ट जो TBA का वैल्यू था दैट वाज 151,875, और जो सेकंड वैल्यू दैट इज दिस. सो दिस वन इज स्मॉलर. ठीक है. सो दिस वन इज स्मॉलर, सो वी विल कंसीडर दिस एरिया टोटल बिल्टअप एरिया. अब देखो हमें HIG का निकालना है, और HIG पूरे प्लॉट एरिया में से 30% कंस्टिट्यूट कर रहा है. फाइन. तो
टोटल बिल्टअप एरिया उस प्लॉट में कितना है 136687.5, इसका 30% यूटिलाइज होगा HIG के लिए, ठीक है। तो HIG के लिए वी विल यूज 30% ऑफ दिस 136687.5, फाइन 6687.5, ठीक है। और आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 41006.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसमें क्या था, जब भी FAR दिया हुआ है और ग्राउंड कवरेज भी दिया हुआ है, तो FAR और प्लॉट एरिया के थ्रू वी विल कैलकुलेट द टोटल बिल्टअप एरिया, और ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है और हाइट रिस्ट्रिक्शन भी दिया हुआ है, तो हमें तो पता है कितने फ्लोर तक जाना है, तो उस हिसाब से भी वी कैलकुलेटेड द टोटल बिल्टअप एरिया। अब दोनों में से जो स्मॉल टोटल बिल्टअप एरिया होगा वी विल कंसीडर दैट, एंड हमें फाइनली वी गॉट आवर टोटल बिल्टअप एरिया। अब निकालना था HIG का मैक्सिमम बिल्टअप एरिया कितना होना चाहिए, तो HIG कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है 30% ऑफ टोटल बिल्टअप एरिया, फाइन। तो 30% of total built up area is this, so we got our answer, fine. Okay, now come to the next type of question. Now this was asked in GATE 2014. इसमें क्या है कि there is some ratio is given regarding MIG, LIG and EWS or any dwelling units, तो उसका कुछ ratio दिया हुआ होता है, उसके हिसाब से you have to calculate the dwelling units, fine. So now let's see this question. In this the plot area is given as 2 hectare, ठीक है, ओके, और मैक्सिमम FAR is given 2, एंड यहाँ पर देखो अब रेशियो में गिवन है, दैट इज द शेयर ऑफ नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स, ठीक है, DU इज हियर इज ड्वेलिंग यूनिट्स, ठीक है, ड्वेलिंग यूनिट मतलब एक घर, ठीक है, वन हाउस एक घर, फॉर MIG, LIG एंड EWS इन द रेशियो 1:2:3, मतलब एक MIG यूनिट का एरिया जितना होगा उसके अंदर, चलो ये बहुत छोटा हो गया, एक सपोज दिस इज 1 MIG, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 LIG यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है, और ये 2 LIG यूनिट्स का जितना एरिया है उसके रिस्पेक्ट में 3 EWS बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में सपोज, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, 3 EWS यूनिट्स बन जाएंगे, फाइन। तो अब देखो एक MIG का साइज है 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वैसे ही 2 LIG यूनिट मींस इंडिविजुअली एक LIG का है 35 मीटर स्क्वायर और EWS का है 25 मीटर स्क्वायर। सबसे पहली बात, यूनिट देखो, जो भी एरिया दिया हुआ है दैट इज द साइज ऑफ एनी ड्वेलिंग यूनिट, जो एरिया दिया हुआ है दैट इज गिवन इन मीटर स्क्वायर, बट टोटल प्लॉट एरिया दैट इज गिवन इन हेक्टेयर। तो सबसे पहला काम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल change this hectare into meter square. तो 1 hectare is 10,000 meter square. एक बार ये गेट में भी पूछा हुआ है कि so 1 hectare is 10,000 meter square. Now next, यहाँ पर FAR दिया हुआ है, प्लॉट एरिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, टोटल बिल्टअप एरिया निकालने का। हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल बिल्टअप एरिया, ओके, नाउ let's write the proper formula. FAR is equal to total built up area by plot area, right? ठीक है, now plot area is given, FAR is given, can we calculate total built up area? Yes, so total built up area is okay, FAR is given 2 into plot area is okay 20,000, ठीक है, so it will come out to be 40,000 meter square. तो
तो देखो 1 हेक्टेयर का 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो 2 हेक्टेयर का 20,000 हो जाएगा। तो यहीं पे लिख लो सबसे पहले 20,000 मीटर स्क्वायर। तो वी गॉट द टोटल बिल्ट अप एरिया एज 40,000 मीटर स्क्वायर फर्स्ट। अब देखो हमें क्या निकालना है, जो निकालना है लाइक ड्वेलिंग यूनिट्स, तो जो निकालना है उसको कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम कर लो। सो लेट द नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट बी एक्स, ठीक है, एक्स है, ठीक है। अब देखो अगर हाउ वी कैन राइट, देखो ये ड्वेलिंग यूनिट का ही रेशियो है, तो वी कैन राइट लाइक 1x 2x 3x, ये हो जाएगा इतना ड्वेलिंग यूनिट फॉर योर MIG LIG एंड EWS रिस्पेक्टिवली। बट यहाँ पे देखो बेसिकली एरिया के टर्म्स में डिफाइन करना है, ठीक है। टोटल बिल्टअप एरिया गिवन है, और हाँ यहाँ पे देखो अगर हम लोग ऐसे भी करते, सो दिस इज इक्वल टू टोटल ड्वेलिंग यूनिट, ठीक है। बट यहाँ पर दो वेरिएबल है, हमें टोटल ड्वेलिंग यूनिट भी नहीं पता है, और ऐसे करते थे ना हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन में कि टोटल ड्वेलिंग यूनिट अगर गिवन होता तो हम लोग इस प्रोसेस से आगे बढ़ सकते थे, बट हमें यही तो निकालना है। तो अब हम लोग इसके लिए दूसरा अप्रोच लगाएंगे, दैट इज हमारा जो इंडिविजुअल प्लॉट का साइजेस है, ठीक है, और हमें टोटल बिल्टअप एरिया पता है, फाइन। तो व्हाट वी विल डू कि देखो MIG एक है 55 मीटर स्क्वायर, और एक ड्वेलिंग यूनिट का 55 मीटर स्क्वायर है, तो वी विल राइट 50 इन टर्म्स ऑफ एरिया वी आर राइटिंग 55 मीटर स्क्वायर का है एक MIG यूनिट, वी विल राइट x, ठीक है, प्लस 35 मीटर स्क्वायर, और ऐसे LIGs देखो इसके रिस्पेक्ट में ये 2 है, बट कितनी नंबर ऑफ ऐसे LIG प्लॉट्स होंगे वी डोंट नो द ड्वेलिंग यूनिट, सो 2x, ठीक है, प्लस दिस 25 इंटू 3x, ठीक है। तो एक ड्वेलिंग यूनिट तो 25 का होगा, ठीक है, और MIG के रिस्पेक्ट में जो रेशियो है दैट इज योर 3, मतलब एक MIG पे 3 के एरिया पे 3 EWS का एरिया यूज हो जाएगा, ठीक है। बट कितने ड्वेलिंग यूनिट है ये तो हमें नहीं पता, बट अगर तुम ये ओवरऑल ये एरिया के टर्म्स में हो गया कि MIG का सपोज लेट्स टेक एनी एग्जांपल लाइक 2 प्लॉट है, तो 2 प्लॉट का एरिया, फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली उतना प्लॉट का एरिया, इतना प्लॉट का एरिया, तो ये सारा बिल्डेबल एरिया हो गया। सो दिस बिल्डेबल एरिया is equal to the total built-up area, that is 40,000. Okay, तो इसके थ्रू we can calculate x, और x आएगा I think when you calculate it you'll get 200, ठीक है। अब स्मार्टनेस दिखा के 200 आंसर लिख मत देना पेपर में, बिकॉज ये तुम्हारा ड्वेलिंग यूनिट आए, मतलब सिर्फ MIG के लिए इतना ड्वेलिंग यूनिट्स है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द ड्वेलिंग यूनिट्स फॉर MIG ओनली, फाइन। अब यहाँ पर रेशियो गिवन है ना ड्वेलिंग यूनिट्स का, तो एक MIG पे 2 LIG, 2 LIG पे 3 LIG, फाइन। तो वी हैव टू कैलकुलेट, आई एम राइटिंग इट हियर ओनली, कि ड्वेलिंग यूनिट MIG LIG, LIG EWS, it's x, 2x and 3x, so it will be 200, 2 into 200 400, and 3 into 200 is 600, so it will be 1200 dwelling units. So total dwelling unit पूछा हुआ था, and that is 1200 dwelling unit, fine. तो I hope it's clear, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे अगर फ्यूचर में, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, फाइन।
Okay, now come to the next question that is asked in 2009. Now basically ये जो type of question है ये housing need और housing demand पे questions है, ठीक है? तो let's begin. देखो जो भी given है, population एक city का 50,000 है, average household is 5, occupied dwelling unit is 8400 dwelling units, जिसका 10% उस 10% is in a dilapidated condition, तो हाउसिंग डिमांड कितना है, ठीक है? अब देखो पहली बात तो हाउसिंग डिमांड पूछा हुआ है, बिना कुछ सोचे आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला फॉर हाउसिंग डिमांड, दैट इज होमलेस हु कैन पे, होमलेस हु कैन पे प्लस द डिलैपिडेटेड हाउसेस, ठीक है? यही बताया था फॉर्मूला हाउसिंग डिमांड का. अब देखो, ओके, कीप दिस इन माइंड. अब चलो यहाँ पर बताया है एवरेज हाउस होल्ड है 5, मतलब एक घर में 5 मेंबर रह सकते हैं, ठीक है? और टोटल पॉपुलेशन मेरे पास 50,000 का है, तो टोटल कितने घर चाहिए, मीन्स हाउ मेनी ड्वेलिंग यूनिट्स, हाउ मेनी हाउसेज डू वी नीड इफ वी हैव 50,000 पॉपुलेशन एंड ईच हाउस कंटेन 5 मेंबर्स, ठीक है? तो कितने हाउसेज चाहिए, तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, आई एम राइटिंग HH हाउस होल्ड, दैट इज टोटल कितना है, पॉपुलेशन दैट इज 50,000 by 5, so we get like there's a total number of household 10,000 होने चाहिए, ठीक है? बट उस 10,000 में से 8400 ही ऑक्यूपाइड है, फाइन, तो 10,000 में से होने चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट, बट प्रेजेंटली दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 10,000, बट प्रेजेंटली कितना ऑक्यूपाइड है, 8400, तो प्रेजेंटली मेरे पास 8400 है, तो मेरे पास शॉर्टेज है हाउसेस का, ठीक है? देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ हाउस, देयर आर like when you subtract it will come 1600 dwelling units, so we are in a shortage of 1600 dwelling units, ठीक है? तो होमलेस हु कैन पे, तो कितने होमलेस हाउस होल्ड्स है, सॉरी दिस इज हाउस होल्ड, ओके, हाउस होल्ड बोलो या ड्वेलिंग यूनिट बोल लो, सेम ही, तो 1600 हाउस होल्ड, तो ये हो गया होमलेस. अब देखो डिलैपिडेटेड हाउसेस निकालना है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जितना भी ड्वेलिंग यूनिट है उसी का कुछ कंडीशन है जो डिलैपिडेटेड कंडीशन में, इट मीन्स इन अ नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक है? तो 8400 का 10% is your houses which is there in the dilapidated condition, so it will come out to be 840 houses or 840 dwelling units, ठीक है? तो अब मेरे से पूछा हुआ है हाउसिंग डिमांड कितना है, ठीक है? बहुत सिंपल है, दैट इज होमलेस हु कैन पे प्लस द डिलैपिडेटेड हाउस, तो डिलैपिडेटेड मेरे पास कितना है, 840, ठीक है? और मेरे को रिक्वायरमेंट है 10,000 का, अवेलेबल है 8400, इट मीन्स 1600 हाउस होल्ड मीन्स 1600 परिवार, दे आर इन अ शॉर्टेज ऑफ होम, मतलब उनके पास घर नहीं है रहने को, दे हैव नो रूफ टू स्टे, सो दे आर होमलेस, तो it will be 1600. So when you calculate it, it will come out to be 2440 dwelling unit. So this is the housing demand. Fine, very easy question. जितना population और average household ये दिया रहेगा, इसके through you have to calculate the total means total number of household, ठीक है? और occupied अगर इतना है, उसका dilapidated condition कितना है, फिर हाउसिंग डिमांड, हाउसिंग नीड, जो भी बोलेगा अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है? आई होप यू गॉट इट.
Okay, now let's move to the next question. Okay, now come to the next question, which is asked in 2006, again on the same concept of housing need and housing demand. So now look, total plot area is given, ठीक है, और उस प्लॉट एरिया पे कितने हाउस होल्ड होने चाहिए वो गिवन है. ओके, बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन हाउस. देखो, एक फैमिली इज कॉल्ड एज एक हाउस होल्ड, ठीक है, और वन हाउस होल्ड मतलब एक फैमिली है तो वो एक घर को ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है. तो वन हाउस होल्ड विल ऑक्यूपाई वन ड्वेलिंग यूनिट, ठीक है. तो वी कैन से दैट वन हाउस होल्ड इज इक्वल टू वन ड्वेलिंग यूनिट, ठीक है. दैट इज वाई आई ऑफन यूज लाइक वन हाउस होल्ड इज इक्वल टू वन ड्वेलिंग यूनिट, और इतने हाउस होल्ड मतलब इतने ड्वेलिंग यूनिट, ठीक है. तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज कि हाउस होल्ड अलग है और ड्वेलिंग यूनिट अलग है. नहीं, दे आर सिमिलर. फाइन, दे आर सेम एक्चुअली, नॉट सिमिलर, दे आर सेम. ओके, now let's read the question again. तो plot area is given 340 hectare, जिसमें 15,000 households बनने, मतलब 15,000 dwelling unit होने चाहिए. occupied dwelling unit कितना है? 12,400, जिसमें से 15% dilapidated condition में है. 5% household जो है, जो भी 5% families है, they are अनेबल टू अफोर्ड एनी ड्वेलिंग यूनिट, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है किसी भी ड्वेलिंग यूनिट को. सो दे विल बी लाइक होमलेस, दे कैन नॉट पे फॉर एनी ड्वेलिंग यूनिट. अब देखो इसको कैसे यूज किया जाएगा. ओके, तो बेसिकली निकालना क्या है, 3: प्रेजेंट डेंसिटी, हाउसिंग नीड एंड हाउसिंग डिमांड. ओके, देखो, सो फर्स्ट इज योर प्रेजेंट डेंसिटी. प्रेजेंट density, okay, and it is being asked in dwelling unit per acre. Fine, देखो हमें दिया हुआ है हेक्टेयर में, पूछ रहा है एकड़ में. तो 1 हेक्टेयर is 2.47. okay, let me confirm about it. 2.47 acre. So 1 hectare is 2.47 acre. So accordingly 340 hectare will be 340 into 2.47 acre, and that will come out to be 839.8 acre. Now it is asked that present density, we have to tell the present density. Okay, so प्रेजेंट डेंसिटी मतलब जितना ड्वेलिंग यूनिट अभी ऑक्यूपाइड है, ना कि जितना रिक्वायर्ड है. अगर रिक्वायर्ड डेंसिटी पूछता तो दैट विल बी योर 15,000, बट हमें प्रेजेंट पूछ रहा है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. सो दैट विल बी 12,400 डिवाइडेड बाई 839.8. तो जो भी आएगा लाइक 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो वो देख लेना. सो दैट विल बी your dwelling unit per, so that will be your density. So first question done, ठीक है. I'm erasing this. चलो अब next second question है housing need. फॉर्मूला बताया था, घर की रिक्वायरमेंट तो सबको होती है, ठीक है. तो housing need, that is dilapidated houses plus homeless people, means homeless household. तो homeless household, ठीक है. तो देखो dilapidated condition पहले निकाल लेते हैं. तो 12,400 into 15 by 100, क्योंकि 15% dilapidated condition है, तो it will come out to be 1860 dwelling units dilapidated condition में है. नेक्स्ट इज योर होमलेस हाउस होल्ड. वो कैसे निकालेंगे? होमलेस हाउस होल्ड के लिए जितना प्रेजेंट रिक्वायर्ड है, दैट इज 15,000 हाउस होल्ड इज रिक्वायर्ड
and out of that 12400 dwelling units is occupied. ठीक है, तो we will subtract it and we'll get the homeless households, that is your 2600. फाइन, तो इतने dwelling units अभी मेरे पास शॉर्टेज है इतने dwelling units का. फाइन, तो ओके, तो होमलेस मेरे पास हाउस होल्ड्स के लिए कितने dwelling units चाहिए? 2600 dwelling units चाहिए. डिलैपिडेटेड कंडीशन इतना है, तो हाउसिंग नीड कितना हो जाएगा? 2600 प्लस 1860. So it will be like 4460 dwelling units. ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाउसिंग नीड. फाइन, अब आ जाओ हाउसिंग डिमांड. मीन्स दे आर होमलेस. हाउसिंग डिमांड क्या होता है? दे आर होमलेस बट दे कैन पे फॉर एनी dwelling यूनिट. यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है that 5% of the household, there is 5% family cannot pay. तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि who cannot pay. Okay, let's write housing demand is equal to homeless who can pay. ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी हाउसिंग डिमांड था, बट वहां पे कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि कितने लोग पे कर सकते, कितने लोग पे नहीं कर सकते. वी जनरली यूज द फॉर्मूला लाइक शॉर्टेज के थ्रू. बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई है कि दीज मेनी पीपल कैन नॉट पे. तो वी विल properly use the formula here that homeless who can pay plus dilapidated houses. ठीक है, देखो इतना दिया हुआ है कि they cannot pay, तो 5% of 15,000 we will calculate. देखो यहाँ पर टोटल जितना रिक्वायर्ड है उसका 5% लेंगे, उसका 5% हाउस होल्ड्स लेंगे. ठीक है, so it will come out to be 750. ठीक है, तो there are 750 dwelling units for which people cannot pay. ठीक है, तो 750 dwelling units को हम लोग हटा देंगे. बाकी those who can pay is, देखो पे के लिए यहाँ पर ओके आई रेज दैट पार्ट नो. ओके 2600, क्योंकि देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल कम आउट द होमलेस. तो ये मेरा होमलेस लोग है, होमलेस हाउस होल्ड्स है, जिसमें से 750 लोग पे नहीं कर सकते. तो दोज हु आर विलिंग टू पे इज 2600 हाउसहोल्ड माइनस 750. सो वी विल गेट हाउ मच? इट्स 1850 dwelling units. ओके, तो 1850 dwelling units we will get. फाइन, तो मेरे पास आ जाएगा 1850 और प्लस डिलैपिडेटेड है मेरे पास 750. ओके नो, डिलैपिडेटेड है 1860. ठीक है, तो 1860 एंड दिस व्हेन यू विल एड इट विल कम आउट टू बी 3710 dwelling unit. तो हाउसिंग डिमांड है 3710 dwelling unit का. हाउसिंग नीड है ओके जो कैलकुलेट किया था पहले वो देख लेना. तो बेसिकली यहाँ पर वही जानना है कि कुछ कुछ कंडीशंस दिए एंड हाउ यू सेटिस्फाई दोज कंडीशंस, राइट. और हाउसिंग नीड, हाउसिंग डिमांड को अच्छे से समझो. हाउस होल्ड एक होता है फैमिली, हाउस होल्ड इज इक्वल टू फैमिली. एक फैमिली एक dwelling यूनिट को ऑक्यूपाई करता है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस टू टर्म्स. अगर फैमिली वाइज टॉक कर रहे हैं तो वी यूज द हाउस होल्ड टर्म्स,
और उसी हाउस होल्ड को अगर घर वाइज डिफाइन करें तो वी यूज ड्वेलिंग यूनिट. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एक हाउस होल्ड मतलब वन फैमिली इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ वन ड्वेलिंग यूनिट. ठीक है, तो वन हाउस होल्ड इज इक्वल टू वन ड्वेलिंग यूनिट. फाइन. और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के और थोड़ा सा फॉर्मूला और सारे चीज को देख करके यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. Okay, now let's come to the next question that is asked in 2017. देखो इसको population को कैसे housing से connect किया हुआ है. So the given population in 2011 is 5 lakhs. तो और dwelling unit available है 2011 में that is 1 lakhs. ठीक है, तो 2031 में additional dwelling unit कितने चाहिए. फाइन. उसके लिए कुछ कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है दैट एवरेज हाउस होल्ड साइज इज 4.5, 5% डिकेडल इंक्रीज है. 2021 में 10,000 हाउस होल्ड्स को और ऐड किया जाएगा, दैट इज ड्वेलिंग यूनिट्स को ऐड किया जाएगा. और 2031 में 5,000 ड्वेलिंग यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स वो सब नॉन हैबिटेबल ड्वेलिंग यूनिट्स होंगे. सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ इट. सबसे पहले population in 2011 is already given, तो पहले और 2031 का asked है. So we have to calculate the population in year 2031. So let's okay. और एक और चीज कंडीशन गिवन है that is 5% decadal increase. तो देखो जनरली परसेंट में गिवन है तो we can use the geometric increase method. ठीक है, तो I am applying Pn is equal to P naught 1 plus R to the power n. तो हमसे पूछा हुआ है P 2031 का. We have the data of P 2011. R is given 5%, so 5 by 100, and the difference between these two is 20. ठीक है, तो 20 years that is 2 decade, so we will put the power here 2. ठीक है, so when you solve 5 lakhs 1 plus 0.05 whole to the power square, and you will get the answer as 551,250 population. ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन इन 2031 वी गॉट. अब देखो ओके, एवरेज हाउस होल्ड साइज भी गिवन है 4.5. मेरे पास इतना टोटल पॉपुलेशन है, एक फैमिली में 4.5 पीपल को कंसीडर करना है. ठीक है, तो मेरे को कितना टोटल घर चाहिए होगा. सो टोटल ड्वेलिंग यूनिट्स रिक्वायर्ड, टोटल कितना पॉपुलेशन है 551,250, और एक घर में कितने मेंबर्स रहेंगे दैट इज 4.5. तो टोटल कितने नंबर ऑफ घर इज रिक्वायर्ड, तो उससे जस्ट निकल जाएगा. एंड आफ्टर दैट द टोटल ड्वेलिंग यूनिट रिक्वायर्ड इज 1,22,500. सो इतने ड्वेलिंग यूनिट्स 2031 तक चाहिए, और एट प्रेजेंट अभी हमारे पास 1 लाख है. ठीक है, अब इसको डायरेक्टली माइनस करने की गलती नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन और दिया हुआ है दैट इन 2021 एडिशनल 10,000 ड्वेलिंग यूनिट्स विल बी एडेड. तो ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. तो ये दोनों कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख हाउसेस है. तो 2021 मीन्स 2031 से पहले 10,000 dwelling units ऐड हो रहे हैं. So by 2021 additional 10,000 dwelling units will be added. So 1 lakh plus 10,000. So it will come out to be 1,1,0,1,0,0,0. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन ये है कि 2031 तक
5000 dwelling units non habitable होगा, so we have to remove 5000 dwelling units. So I am subtracting minus 5000 dwelling units, so it will come out to be 105,000 dwelling units. ठीक है, तो मेरे पास ये existing है, ये required है. Now you can subtract it, and when you subtract this from this, so I'm writing it here. So 2 minus 1, when you'll do, you'll get 17,500 dwelling units. So additional dwelling unit required is 17,500. Fine. Okay. So with this, we have come to the end of this very lecture, and I have tried to cover almost all the different types of question which is asked in GATE, और जो भी similar type of question है you'll of course get in the assignment. Or my next lecture will be on the topic urban planning, or most probably this will be released between 15 to 21st September. ठीक है, 15 से 21st September के बीच में this lecture will be released. ठीक है, till then keep studying, and thank you very much. Bye.